जिस तरीके से आप लोग प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं एक ट्रेडिशन को, डज इट बॉदर यू व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू अनडू दैट वर्क? चाहे वो आप जो प्रोजेक्ट लिया है आपने कॉर्टिजन प्रोजेक्ट, उसमें हो, वेदर इट इज through the, like you said, there are a lot of adulterated fabrics now, textiles in the market. And even when it comes to food, what is, हम जब लखनऊ से बाहर जाते हैं और हमें लखनऊ के नाम पे कोई कुछ ऐसा खिला देता है जो लखनऊ से बिल्कुल बहुत दूर है, तो हम लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं. तो you being a culinary artist, आपको उस बात पे भी थोड़ी सी एतराज होता होगा. तो share some experience of that as well, where you feel that the work you are doing is being undone by someone else. Devanshi, you'll be surprised that if you go to UAE और दुबई में खासकर लखनऊ फूड के नाम पे बहुत ज़्यादा खाना बिकता है, and which is nothing close to what we have in Lucknow. So we were doing a recce of all the Indian restaurants for one of my clients in Dubai. So I think we visited around 35 or 40 Indian restaurants, and then we went to this restaurant which is supposed to be one of the biggest Indian restaurant there. और मतलब ये हालत थी कि 400 covers का restaurant जैसे ही open हुआ 10 minutes में all covers booked. And then they very proudly came and told us कि हमारे जो chefs हैं वो लखनऊ से आए सर. अरे वाह, क्या बात है. And we have 20 types of biryanis on our menu. This was my first shocker. And I said 20 types of biryanis. जी हाँ, नली बिरयानी है और कीमा बिरयानी है और ये बिरयानी है और वो बिरयानी है. I said okay. और फिर हमारे यहाँ के गलावटी कबाब बहुत फेमस है, आप वो ज़रूर खाइए. तो हमने कहा बिल्कुल लेके आइए भाई, गलावटी कबाब देखते. Once the गलावटी kebabs were brought, because it is मतलब disrespect to food कि आप उसको मुंह से निकाल दें. बस इतना नहीं कर पाए हमने और मेरे हस्बैंड. We had to gulp it down. बट मतलब आप लखनऊ के खाने के नाम पर क्या क्या दुनिया में बिक रहा है. तो हमने कहा प्लीज़ हम अब आपके वो शेफ से ज़रूर मिलना चाहेंगे जो लखनऊ से आए हैं. तो दे हैड रियलाइज दैट दे हैड मेड सम ह्यूज मिस्टेक ओवर हियर, एंड देन से अरे वो तो आज शेफ हमारे छुट्टी पे हैं. बट देन लखनऊ फूड इज फेबल्ड फूड. कहानियाँ हैं, किस्से हैं, और लखनऊ के खाने में जो एक नफासत है, जो नज़ाकत है और एक जो तहजीब है, वो शायद दुनिया के किसी खाने में कहीं नहीं है ना. तो वो जो हमारे लखनऊ के पहनावे में और भाषा में है ना, वो उस खाने में भी पूरी तरह से झलकती है. और जब इसको कोई बाहर जाके किसी गलत तरीके से सेल करने की कोशिश करता ना, तो मेरा यकीन मानो दिल जल जाता है. हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, तो आई कैन क्वाइट इमेजिन कि आप पे क्या बीतती होगी. What about you, Manish? आप भी बताएं अपना experience. Yeah, so no, I'll pick up from what Manjari was saying about what she does to give due respect to the tawaifs. I think wahi jo hai, wahi, that is the main purpose of how we look at weavers also. Because weavers are almost like artists. और जबकि बहुत से लोग उनको इस तरह से देखते हैं कि ये तो एक वेंडर हैं जो एक इनको काम दिया, इन्होंने अपना काम खत्म किया, पैसे लिए. इनफैक्ट आई हैव अ प्रॉब्लम विद द वर्ड वेजेस, बिकॉज वेजेस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वीवर्स, बिकॉज वेजेस इज अ वर्ड विच इज linked to something which is probably like more like a labor. Now this is an art form, and I think that is what our effort is, that at every day we want to give that respect to them so that people actually buy it and appreciate it for what it is meant, and they stop comparing the prices of let's say a handcrafted product to a mill-made product or an equivalent, because it obviously means that the mill-made product is made in mass quantity, it is a faster production, therefore it is cheaper. अब एक साड़ी कभी कभी 3 महीने से लेकर 9 महीने तक रहती है. अगर उतना टाइम किसी ने उस पर बिताया है तो उसको उससे अपनी एक तरह से लाइवलीहुड कमाना है. So that is the value of this craft. So that is what I think I would say is the main objective in the textile world, I would say, to give due respect to this as a artist, as an artisan, and not just as a vendor. Would you also like to share some examples of how these textiles have been corrupted, or something is being sold in the market in the name of something else which is not authentic? So that has thousands and thousands of examples, because everybody is using these generic names. So I think GI tag is something which has been a good
sort of a blessing, because GI tag now ensures that at least they cannot put a wrong tag on the product. But in verbal communication, people sell anything as anything, and that is a challenge, and there is absolutely no way to sort of fight that. The only thing again is back to storytelling, that anybody who can authentically narrate that what has gone behind the product, I think that's what the consumers have now started to listen to. They've also become, like we were talking in the morning at breakfast with some of people, and they said that people have become conscious to actually check composition of the fabric, that what actually has gone into the fabric. I think this is how the consumer is slowly becoming conscious, and I think it is a both way process. So just as people who create have to be responsible, I think the consumers who buy have to be responsible. And in fact, another thing I would like to add is, अब ऐसे हालात में क्या हो गया है कि वीवर क्राफ्ट्समैन खुद भी जो है वो अपना फेक प्रोडक्ट ओरिजिनल नाम से बेचते हैं, क्योंकि कस्टमर को उसकी आदत है. तो वो सोचते हैं कि चलिए मैं उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट तो दे नहीं सकता उस दाम पे, तो वो कह के मैं इनको फेक प्रोडक्ट दे देता हूँ. और ये भी मतलब हम बहुत कोशिश करते हैं कि जब भी हम इंटरेक्शन करें उनको समझाएं कि इस तरह से तो आप खुद ही अपनी रोजी रोटी पे पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि फिर आपका ओरिजिनल कौन खरीदेगा अगर आप ही उसको डिस्टॉर्ट करके बेचेंगे. Would you like to elaborate about the projection of Tawaifs in an unhistorical way? सी फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए बॉलीवुड जो है इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट टू टीच अस हिस्ट्री. ठीक है, दैट इज़ फेयर फॉर देम कि उनका काम है आपको टिटिलेट करना, एंटरटेन करना. उनका काम नहीं है कि वो आपको हिस्ट्री पढ़ाएं. सो दे गेट अवे विद दिस विद एवरीथिंग. नाउ वेयर इट कम्स इज कि क्या हमारे पास ऑल्टरनेट मीडियम्स हैं जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो कि जैसे मैंने कहा विमेन हिस्ट्रीज. मेरा गुस्सा कह लीजिए या मेरा दुख ये है कि विमेन हिस्ट्रीज कभी लिखी नहीं गई, क्योंकि इतिहास मर्दों ने लिखा. औरतों की हिस्ट्री भी मर्दों ने लिखी, तो औरतों की हिस्ट्री तो हमारे पास आई ही नहीं है, तो हम जानते ही नहीं औरत की हिस्ट्री के बारे में. अब उसमें क्या होता है कि बॉलीवुड कोई भी एक छोटी सी चीज़ को लेके और वो कुछ भी बना देता है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. हीरा मंडी आई थी नेटफ्लिक्स पर. इट इज़, आई कॉल इट अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, because Hira Mandi had come at a time when society was open enough to accept women performers as women performers and not as prostitutes. Hira Mandi could have taken that forward. It did not, because it fell to the trap of only showing something which is sexually, exciting for people to watch. So when you come out of, आपने हीरा मंडी देखी, आपने कभी उसमें देखा कि कोई भी कैरेक्टर कभी 15 मिनट भी रियाज कर रहा था डांस का, म्यूजिक का? कभी कोई औरत राग की प्रैक्टिस कर रही थी? कभी उसमें इनफैक्ट व्हाट दे शोड वाज कि अगर कोई औरत तवाइफ जो है वो अगर शायरी लिख रही है तो उसकी किताबें जला दी जाएंगी. नाउ दिस इज व्हाट बॉलीवुड शोड यू. बट हिस्टोरिकली तवाइफ्स वर द ओनली वेल रेड वुमेन. वो दीवान लिखती थी फारसी में, वो उर्दू की शायरी करती थी. वही उस जमाने में जब औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तवाइफें ही ऐसी होती थी जो पढ़ी लिखी होती थी. तो अब हिस्ट्री तो ये है कि वो औरतें पढ़ी लिखी होती थी. फारसी के दीवान हैं हम लोगों के पास, मतलब वो तो एक्चुअली प्रिंटेड दीवान हैं. महलका बाई चंदा का भी है, मलका जान का भी है. पर बॉलीवुड आपको ये दिखा रहा है ओ ये अनपढ़ औरतें होती थी, ये पढ़ी लिखी नहीं होती थी. Narrative suddenly has changed into the mass perspective, where things go wrong. अब हमारे जैसे रीच, हमारी थोड़ी रीच है, बट मुझे ये लगता है कि हम ये सही चीज़ें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, इवन विद अ लिमिटेड रीच, हमको वो डाल के छोड़ देनी है फॉर फ्यूचर जनरेशन्स टू रीच बैक. लाइक व्हाट मनीष सेड कि कई बार क्या होता है कि वो इतना झूठ आता चला जाता है कि सच तो फिर पता ही नहीं चलता किस लेयर पे छुप गया है. तो हमें वो काम करना है उन लेयर्स का जहाँ पर हम सत्यापित चीज़ें वहाँ पर डालते जाएं कि उसके ऊपर 100 लेयर का झूठ भी आए तो कभी तो वो एक लेयर उभर के आ जाएगी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कि नहीं भाई ये नहीं था. दे वर द टेलर स्विफ्ट ऑफ देयर टाइम्स. बिल्कुल.
दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन जो कल मनीष ये इशू हम लोग बात कर एक मिनट देवांशी, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि वो आप लोगों ने सबने बहुत देखा था। एक हीरा मंडी में एक चाल क्या वो हुआ था, गजगामिनी चाल। वो वीडियो इतना वायरल हुआ, हर जना एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहा है गजगामिनी चाल। It had, and they were, saying it as the classical dance Gajgamini Chal. Trust me, there was nothing of a Gajgamini Chal in it. But it went so viral with the wrongness of it that I had to actually put up a video. Now, I don't know, my video must have been seen by only thousands. That was seen by millions. But even those thousands, I had just put that, this has nothing to do, it's a hip swaying movement. A hip swaying movement, hai, that's it. Gajgamini Chal has many technical aspects to it which are not there in that chal. But like I said, abo Gajgamini walk, everybody was forwarding, they were making reels of dogs walking like that, everything. So it is a popular medium which is there, and that popular medium जब वो गलत narrative आप लोगों तक पहुंचाता है तो वो आप लोगों के जहन में रह जाता है.